بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عراق کے شہر بصرہ کی بات ہے جہاں ہاشم نامی ایک شخص رہتا تھا۔ ہاشم کے 2 بھائی اور بھی تھے جن کا نام عبداللہ اور یامین تھا۔ ان کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا جبکہ تینوں کی والدہ ابھی زندہ تھیں۔ بڑے 2 بھائی عبداللہ اور یامین بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے جبکہ ہاشم گھر پر ماں کے ساتھ رہتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ ہاشم ماں کا بہت ہی فرما بردار بیٹا تھا۔ پورا دن ماں کا خیال رکھنا اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا ہی ہاشم کا معمول تھا۔ بھائیوں نے ہاشم سے کہہ رکھا تھا کہ گھر پر والدہ کی دیکھ بھال کرو اور ان کا خیال رکھو، ہم تمہارا خرچ اٹھائیں گے۔ ہاشم اسی میں خوش تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہاشم نے نہ کوئی تعلیم حاصل کی اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھا، لیکن والدہ کی خدمت کرتا رہا اور ان کی دعائیں لیتا رہا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور دونوں بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ والدہ کے انتقال کرنے کے بعد ہاشم نے بھی شادی کر لی۔ ہاشم کی شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ اس کے بھائیوں نے اسے کہا کہ اب ہم تمہارا خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاشم نے کہا کہ تم دونوں نے ہی تو کہا تھا کہ ہم تمہارا ساری عمر خرچ اٹھائیں گے، اب ایسا کیوں کر رہے ہو؟ دونوں بھائیوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ اب ہمارے بیوی بچے ہیں، ہم ان کا خرچ اٹھائیں یہ تمام عمر تمہیں کھلاتے رہیں۔ بھائیوں کا جواب سن کر ہاشم بہت دکھی ہوا اور گھر آ کر افسردہ بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ ہاشم کی بیوی نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری بات بتا دی۔ ہاشم کی بیوی بہت سلیقہ مند اور ذہین عورت تھی۔ اس نے اپنے پاس جمع کیے ہوئے کچھ پیسے لیے اور ہاشم کو دے کر کہا کہ بازار جا کر ایک سفید لباس اور ایک جوتا اور ایک چھڑی لے آؤ۔ ہاشم بیوی کی بات سن کر بازار سے ساری چیزیں لے آیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ جہاں آپ کے دونوں بھائی کام کرتے ہیں وہاں جاؤ اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ بات کرو۔ یہ ظاہر نہ کرنا کہ آپ ان پڑھ ہیں اور آپ کو دنیاوی معلومات کی کوئی سمجھ نہیں۔ جو بھی بات کرو ڈٹ کر کرو۔ جب ہاشم محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وزیر کے پاس پہلے سے ہی 2 لوگ نوکری کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ اگر تم تینوں میں سے کسی نے یہ بتا دیا کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے تو میں اسے نوکری پر رکھ لوں گا۔ پہلے شخص نے کہا کہ آپ کی مٹھی میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ وزیر نے نفی میں سر ہلایا اور اسے واپس بھیج دیا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ آپ کی مٹھی میں ہیرے کی انگوٹھی ہے۔ وزیر نے پھر نفی میں سر ہلایا اور اسے بھی واپس بھیج دیا۔ اب صرف ہاشم ہی بچا تھا۔ وزیر نے کہا کہ بھائی تم تو مجھے عقل مند لگتے ہو، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ ہاشم نے آہستہ سے کہا بھائی آج تو ٹڈا مٹھی میں آ گیا۔ وزیر نے مٹھی کھولی تو اس میں واقعی ایک ٹڈا تھا۔ دراصل ہاشم نے اپنے آپ کو ٹڈا کہا تھا۔ وزیر نے سمجھا کہ ہاشم کو واقعی معلوم تھا کہ اس کی مٹھی میں کیا ہے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ یہ شخص بہت عقل مند ہے اور بادشاہ نے اسے ماہانہ 3000 دینار اجرت پر رکھ لیا۔ ہاشم خوشی خوشی گھر آیا اور بیوی کو ساری بات بتائی۔ بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ صبح کام پر جائیں اور خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہیں، کسی سے فالتو بات نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کی روزی کا بندوبست کر دیا ہے تو انشاءاللہ
आगे भी सब बेहतर होगा। कुछ दिन गुजरे तो बादशाह की बेटी अपनी सहेलियों के साथ नहर पर गई। वहां उन्होंने पानी पिया और मुंह धोया। इत्तेफाक से बादशाह की बेटी की हीरे की अंगूठी वहां गुम हो गई। बादशाह की बेटी की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों में से हाशिम भी था। हाशिम ने देखा कि एक बतख ने वो अंगूठी निगल ली है। हाशिम ने एक पत्थर उठाकर बतख को मारा जो उसकी टांग पर लगा। वो लंगड़ाती हुई पानी में चली गई और दूसरी बतखों के साथ जा मिली। जब बादशाह की बेटी को पता चला कि अंगूठी गुम हो गई है तो बादशाह ने वजीर से कहा कि नए अक्लमंद शख्स हाशिम को बुलाओ। हाशिम दरबार में आया तो बादशाह ने कहा कि क्या तुम इसका कोई हल निकाल सकते हो? हाशिम ने कहा कि बादशाह सलामत, नहर से सारी बतखें बुलवाई जाएं। बादशाह ने हैरान होकर पूछा कि बतखों से अंगूठी का क्या ताल्लुक? हाशिम ने कहा कि आप हुक्म तो सादिर फरमाएं। जब बतखें लाई गई तो हाशिम ने वही लंगड़ाती बतख को पकड़कर ज़बह करने का हुक्म दिया। जब बतख को ज़बह किया गया तो इसके पेट से वाकई वो हीरे की अंगूठी निकल आई। बादशाह ने खुश होकर हाशिम की तनख्वाह में मजीद 3000 दिनार का इजाफा कर दिया। हाशिम ने दिल में सोचा कि दूसरा जुगाड़ भी लग गया। इसने घर आकर बीवी को सारा माजरा सुनाया और बताया कि तनख्वाह भी दुगना हो गई है। बीवी ने कहा कि अल्लाह ने निजाम सीधा किया हुआ है तो आगे भी इंशाअल्लाह बेहतरीन होगा। अब हाशिम का वक्त अच्छे से गुजरता रहा, लेकिन उसे दिल ही दिल में एक खौफ भी था कि कहीं ऐसा कोई माजरा न पेश आ जाए जिससे ये हकीकत खुल जाए कि वो अनपढ़ है और बदकिस्मत वो महल में इस ओहदे पर कायम है। कुछ अरसा गुजरा कि बादशाह का शाही खजाना कुछ चोरों ने मिलकर चुरा लिया। पूरे मुल्क में ये बात फैल गई कि शाही खजाना चोरी हो गया है। बादशाह बहुत हैरान और परेशान हुआ। उसने वजीर से कहा कि हाशिम को बुलाओ और उसे कहो कि तुम्हारे पास इस मसले का कोई हल है। हाशिम को दरबार में हाजिर किया गया और उससे इस बात का हल दरियाफ्त किया गया। हाशिम ये बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ कि अब वो इन चोरों को कैसे तलाश करेगा। हाशिम ने कहा, बादशाह सलामत, हल तो है लेकिन मुझे 8 दिन चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है। बादशाह ने इसको 8 दिन की मोहलत दी। हाशिम घर आया और सोचने लगा कि अब तक तो अल्लाह के फजल से 2 दफा जुगाड़ लग गया, अब इस दफा क्या करूंगा। इसी सोचो फिक्र में 7 दिन इसी तरह सोचते सोचते गुजर गए। रात को वो घर पर बैठा सोच रहा था कि क्या करूं और अल्लाह से दुआ कर रहा था कि कोई राह नजात मिल जाए। दूसरी तरफ जिन चोरों ने महल के खजाने को चुराया था उन्हें भी इस बात का पता चल गया था कि बादशाह का सबसे अक्लमंद शख्स हाशिम ने 8 दिनों की मोहलत मांगी है और कल वो अपना फैसला सुनाएगा। वो चोर जिन्होंने शाही खजाना चोरी किया था आपस में गुफ्तगू करने लगे कि इसने अगर हमें पकड़वा दिया तो हमारी तो न दुनिया रहेगी और न ही आखिरत, और बादशाह हमें इबरतनाक सजा देगा। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हाशिम के पास चलते हैं, शायद उसके पास कोई हल हो। अब जैसे ही वो सभी चोर हाशिम के घर के करीब पहुंचे तो एक चोर का जूता टूट गया और वो पीछे रह गया। बाकी चोर जैसे ही हाशिम के घर के दरवाजे के पास पहुंचे तो अंदर से आवाज आई कि 7 हो गए, एक बाकी रह गया है। इत्तेफाक से हुआ ये था कि इन चोरों की तादाद 8 थी। चोरों ने जब सुना तो हैरान रह गए
और कहने लगे, इसको तो वाकई ही पता चल गया है कि हम ही 8 चोर हैं, क्योंकि 7 हम यहाँ पर हैं और 8वां जिसका जूता टूट गया वो पीछे है। जो हम सोच रहे थे वो बात ठीक थी। ये वाकई बहुत ही अक्लमंद आदमी है। उन्होंने कहा कि 8वें को जल्दी से बुलाओ और अंदर चलकर इसकी मिन्नतों समाजित करते हैं कि हमें किसी तरह बचा ले। अब हाशिम तो दिनों की बात कर रहा था कि 7 दिन गुजर गए और 1 रह गया है। चोरों को लगा कि ये हमें कह रहा है। ये 8 चोर उसके पांव में आकर गिर गए और कहा कि ये खजाना हमने ही चुराया है। हाशिम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। चोरों ने कहा कि हमें किसी तरह बादशाह के गजब से बचा लो, ये खजाना भी तुम रख लो। हाशिम ने कहा, खजाने को कहीं दफना दो और कहा कि तुम सुबह बादशाह के दरबार में आ जाना और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करना। उसने उनको कुछ और बातें भी बताई। अब सुबह हाशिम बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। उसने कहा कि बादशाह सलामत, खजाना मिल गया है, लेकिन उसको लाने के लिए मुझे 8 मजदूर चाहिए। बादशाह ने कहा कि जिन्होंने खजाना चोरी किया है वो चोर कहाँ है? हाशिम ने कहा, बादशाह सलामत, खजाना तो हासिल करें, चोर तो बात की बात है। बादशाह इस बात पर राजी हो गया और फिर वही 8 चोर मजदूर के रूप में बादशाह के सामने हाजिर हुए और कहा कि हम मजदूरी करेंगे और खजाना लेकर आएंगे। हाशिम ने बादशाह सलामत से कहा कि इन सब मजदूरों को 200 दीनार उजरत देनी है। बादशाह राजी हो गया। अब 8 चोर हाशिम के साथ गए। वो खजाना लेकर आ गए और बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। सारा खजाना देखकर बादशाह बहुत ही खुश हुआ। उसने मजदूरों को उजरत भी 2 गुना दी और हाशिम को पास बुलाकर शाबाशी दी और कहा कि जितना खजाना लेना चाहो ले लो। हाशिम ने कुछ सोने की अशरफियां ली और घर चला आया। घर आकर हाशिम ने बीवी से कहा कि खामोशी के साथ अब यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह को पता चल जाए कि मैं अनपढ़ हूँ और आज तक जो भी हुआ वो किस्मत से हुआ और उल्टा सजा मिल जाए। वो रातों रात वहां से निकले। रास्ते में एक आदमी मिल गया। उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? हाशिम के मुंह से निकल गया कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। उस शख्स ने ये बात फौरन बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह ने उसके पीछे फौज भेजी जो हाशिम को पकड़कर महल ले आए। बादशाह ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेरे खास आदमी हो। अब हाशिम ने कहा, बादशाह सलामत, सच बात यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जितनी बार भी आपने मुझे हुक्म दिया अल्लाह ने मुझे बचा लिया और कोई जुगाड़ लगाकर काम चलता रहा। और फिर इसने अपनी सारी बात बादशाह को बता दी कि कैसे माँ की खिदमत के लिए इसने दुनियावी कोई हुनर हासिल नहीं किया। बादशाह ने हाशिम की बात सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, तुमने सच बताया। जैसा भी हो, तुमने मुझे शाही खजाना वापस करवा दिया, मेरे लिए यही बहुत है। तुम अब काम करो या ना करो, ये मेरा फैसला है कि तमाम उम्र तुम्हें तनख्वाह मिलेगी और तुम ताउम्र मेरे दरबार में इसी ओहदे पर कायम रहोगे। इस तरह हाशिम और उसकी बीवी उसी शहर में रहने लगे। ये कहानी सबक देती है कि रोजी रोटी का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। रोजी हर हाल में उस शख्स तक पहुंच कर ही रहती है। माँ की खिदमत करने पर हाशिम की हर मुश्किल हल होती चली गई।
जहां वो अपने भाइयों की मेहरबानी पर जीता था, माँ की खिदमत ने उसे उसी महल में एक बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और ये कहानी कैसी लगी ये जरूर बताएं। ऐसे ही सबक आमोज कहानी के लिए हमारे चैनल आयशा उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए जज़ाकल्लाह। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।